Assalamu alaikum students. We are going to continue exercise 5.2 and in this lecture we will cover question number 3 and 4 of this exercise. Question number 3 is factorize. We will solve the seventh part of it, 5x squared plus 33xy minus 14y squared. The question is of the same type as we have done previously, x squared plus px plus q, and we will use again midterm break to complete this question or to solve it. First of all, we have to multiply the first and last digit and we see the constant term or the coefficient with the central term. So multiplying first and last digit, we will get 70. Central coefficient is 33 and after multiplying 5 with 14 we get 70. Now we have to factorize 70 in such a way that the two terms after multiplication give the answer 70 and after addition or subtraction give the answer 33. तो हमने 70 को डिफरेंट टेबल्स इस तरह से पढ़े कि हमारा आंसर 70 आ जाए. 1 into 70 is 70 but 1 and 70 subtracting और adding हमारा आंसर 33 नहीं आता. 2 and 35 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से आंसर 33 आ रहा है जबकि 5 और 14 से भी नहीं आता. सो हम 2 और 35 प्लेस करेंगे इंस्टेड ऑफ 33 बिकॉज 2 into 35 is 70 और 35 minus 2 is 33. So we have placed here. Now we will multiply the bracket and multiply it with x and y. It would become 35xy minus 2xy. अब क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट आ चुके हैं, हमें पता है कि हमें फर्स्ट 2 डिजिट्स में से कॉमन लेना है और उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स में से कॉमन लेना है. Taking common from the first 2 digits, 5 and 35, the common is 5 because 35 is the multiple of it. X square and xy is common digit is x. 5x is common, so only x remains. We will write x inside the bracket, sign will remain the same. 5 7 times 35, so 7 will come inside the bracket. We have taken x outside the bracket, so only y will remain inside the bracket. उसके बाद हम सेम साइन जो क्वेश्चन में होता है वही यूज़ करते हैं, विच इज़ माइनस 2 और 14 में से, और कॉमन इज 2 क्योंकि 14 इज द मल्टीपल ऑफ 2. एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर वी हैव टेकन वाई एज द कॉमन डिजिट. द रिमेनिंग things should be written inside the bracket, so the remainders are x plus 7y. अगेन हमने देखा कि हमारी दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आई हैं, इसका मतलब हमने मिड टर्म ठीक ब्रेक की है. So we will write the same brackets once and the digits that are written outside the two brackets, which is 5x and minus 2y, they will be written inside the other bracket. Next I will solve 8th part. This part is little different than the other parts because here we can apply two methods. एक तो ये क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व हो सकता है, दूसरा ये क्वेश्चन हमारा परफेक्ट स्क्वायर से भी सॉल्व होगा क्योंकि ये फर्स्ट डिजिट हमारा a स्क्वायर को शो कर रहा है और लास्ट डिजिट b स्क्वायर को, बट सेंट्रल टर्म इज 2ab. हम इस फॉर्मूला को क्लोज भी कर सकते हैं, बट आई विल फॉलो द मेथड ऑफ मिड टर्म ब्रेक एज वी आर डूइंग प्रीवियसली. मिड टर्म ब्रेक के लिए वी मस्ट बी हैविंग सिंगल डिजिट्स, नॉट द फ्रैक्शंस. So we will suppose that 5x minus 1 over x is equals to y. सिर्फ ये इसलिए suppose किया ताकि हमारे पास एक सिंगल डिजिट आ जाए. At the end writing the answer हम y को again replace कर देंगे उसके ओरिजिनल डिजिट के साथ. So putting 5x minus 1 over x equal to y in the above equation, we get इस पूरी ब्रैकेट के अंदर we have placed y, square remains the same. Plus 4 again bracket के अंदर we have placed y and plus 4 remains the same. So our new equation is y square plus 4y equals to 4. Now we have to break the midterm. Our central coefficient is 4 and multiplying the first and last digit we also get 4. तो ये तो बहुत simple है. 1 into 4 and 2 into 2. So 2 into 2 would be taken because 1 into 4 subtract करने से 3 आ जाता है, add करने से 5. So 2 into 4 is 4 and adding 2 to 2 we get 4. So we have replaced 4. हमने उसकी जगह 2 plus 2 लिख दिया. अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास y square plus 2y equals to 4 आ जाएगा. फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स और लास्ट 2 ब्रैकेट्स में से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बिल्कुल सेम ब्रैकेट्स आ जाएंगी. क्योंकि हमारे पास सेम ब्रैकेट्स आ गई हैं, so we can write as the whole square, y plus 2 whole square.
जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था दैट एट द एंड वी विल राइट द आंसर बाय रिप्लेसिंग इट, तो हम y प्लस टू होल स्क्वायर की जगह y की जगह वी विल प्लेस 5x माइनस 1 ओवर x एंड प्लस टू विल रिमेन द सेम एंड होल स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. वी कैन सॉल्व इट बाय अदर मेथड एज वेल. अगर हम परफेक्ट स्क्वायर से इसे सॉल्व करें तो वो 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वी हैव यूज द सेम मिड टर्म ब्रेक मेथड. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन में ऑलरेडी ब्रैकेट्स आर गिवन, सो वी हैव टू फर्स्ट सॉल्व द ब्रैकेट्स. हमें पता है कि जब भी कभी ब्रैकेट्स आ जाएं तो पहले सबसे पहले वो सॉल्व करनी होती हैं, उसके बाद हम उस पर कोई भी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई कर सकते हैं. अब looking at the brackets, we know that x square plus 5x is common to both of them. तो हम उसे लेट कर लेंगे equals to y. जस्ट ये हमने इसलिए किया बिकॉज हमारी ब्रैकेट्स बहुत बड़ी हैं. x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद वी विल गेट x4 विच इज अ ग्रेटर टर्म. तो टू कट इट शॉर्ट और टू कीप इट इन द स्मॉलर फॉर्म हमने x स्क्वायर प्लस 5x जो कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम था उसको y सपोज कर लिया. अब हमने ब्रैकेट्स में x स्क्वायर प्लस 5x को रिप्लेस कर देना है y के साथ. So the new brackets will become y plus 4 and y plus 6 minus 3 will remain the same. सिंपल हमने यहाँ क्या किया, जो डिजिट्स हमें सेम नजर आ रहे थे उन डिजिट्स को हमने रिप्लेस कर दिया y के साथ. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स. हमने y को y प्लस 6 दोनों से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर प्लस 6y आ गया. 4 को y प्लस 6 दोनों से मल्टीप्लाई किया तो 4y प्लस 24 आ गया, माइनस 3 एज इट इज आ गया. अब हमने लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया. 6y plus 4y becomes 10y and plus 24 minus 3 becomes plus 24 minus 3 becomes plus 21. Again now we have to break the midterm. Our central coefficient is 10 and multiplying the first and last digit we get 21. So factorizing it, 1 into 21, 3 into 7. So 3 plus 7 is 10 and 3 into 7 is 21. So our factors would be 3 and 7. Now opening the bracket, then we will take common from the two brackets. As you can see the brackets are same, so we are having the correct solution. Now again at the end, as we have y here and y here, so we have to replace this y with the original digits. So we will put the values of y in the above equation. We will get x square plus 5x plus 3 as it is, y replacing y with x square plus 5x and 5 plus 7 will remain the same. Coming to the third part of this, now we have 4 brackets. We will multiply the brackets in such a way that we must be having some common digits in both the brackets. जिस तरह हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन के अंदर ब्रैकेट के अंदर दो ऐसे डिजिट्स थे जो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन थे, इसी तरह हमने इन ब्रैकेट्स को भी इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे दो डिजिट्स ब्रैकेट के अंदर कॉमन ज़रूर आए. अब हम देखते हैं कि हमारे किस तरीके से इसे अरेंज करें कि हमारे आंसर सेम आ जाएं. सो वी कैन सी दैट 2 and 5 इसको हम ऐड करें तो 7 बनता है और 3 और 4 को ऐड करने से भी 7 बनता है. तो हम x प्लस 2 और x प्लस 5 को इकट्ठा लिख देंगे और x प्लस 3 और x प्लस 4 को इकट्ठा लिख देंगे क्योंकि 5 प्लस 2 इज 7 एंड 3 प्लस 4 इज ऑल्सो 7. तो इससे हमें नजर आ रहा है कि हमारा कुछ कॉमन चीज निकल आएगी. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स. फर्स्ट टू ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, x और 5 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 भी x और 5 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये आंसर आया. नेक्स्ट ब्रैकेट में x और 5 x प्लस 4 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, 3 भी x प्लस 4 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ और हमारा आंसर आ गया. आफ्टर मल्टीप्लाइंग द ब्रैकेट्स हम लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. 2x and 5x are the like terms and 3x and 4x are the like terms. इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 7x and 7x आ जाएगा. So now the brackets become x square plus 7x plus 10 and x square plus 7x plus 12 minus 15. Now you can see inside the bracket x square plus 7x and x square plus 7x are the same terms. So we will suppose them and we will say that let x square plus 7x equals to y. Now replacing
x square plus 7x in both the brackets with y, we get y plus 10 and y plus 12 minus 15. Now we will multiply these two brackets. मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको आता है, फर्स्ट डिजिट को नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से और सेकंड डिजिट को नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 22y and 120 minus 15 will become 105. This is the last step from the previous slide. हमें पता है कि अब हमारा क्योंकि मिड टर्म ब्रेक अप्लाई होनी है, so we will multiply the first and last digit and looking at the central coefficient. हमारा central coefficient is 22 and multiplying the first and last digit we will get 105. Taking all the multiples, हमारे कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 22 बन रहा है, विच इज़ द लास्ट वन. 15 प्लस 7 इज 22. तो जब हमने 22 को रिप्लेस कर दिया 7 प्लस 15 के साथ, उसके बाद वी विल ओपन द ब्रैकेट. आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट वी विल टेक कॉमन फ्रॉम द टू डिजिट्स, first two and the last two. The brackets are same, so we are having the correct solution. We will write the same bracket as once and y plus 15 which are outside the two brackets in one bracket. अब हमें again putting the value of y in the above equation we get y हमने क्या सपोज किया था, y हमने सपोज किया था x square plus 7x. तो हमने y की जगह x square plus 7x लिख दिया, plus 7 ऐसे ही यहाँ भी y की जगह x square plus 7x and plus 15 is the same. अगर यहाँ पे मजीद मिड टर्म ब्रेक होती या कोई और मेथड अप्लाई होता तो वो हम अप्लाई करते और नेक्स्ट सोल्यूशन करते, बट नाउ वी विल सॉल्व इट टिल हियर बिकॉज इससे आगे यहाँ पे कोई मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है. दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म.